Namaste. Good evening, everyone. Welcome to my channel. Today, I will give you two recent updates in economics. One is inflation, which is released today, and another is a Silicon Valley Bank crisis. Okay, these two updates I will provide. Uh, Let me start with the main thing. Okay, right. So what are the main recent economic updates that we have received? First one today I will tell you is about inflation. The inflation in India has eased to 6.4% in February 2023, for the last month, from 6.5% in January 2023. You got it? So the inflation has decreased, and the core inflation, which excludes food and fuel, that the most volatile parts, is 6.1%. Is the stable part. The RBI inflation target is 4%. However, the tolerance band is 2 to 6%, and the inflation rate is above the upper limit. And another thing that in your interview they might ask that how the inflation is calculated. The inflation is calculated. You have to see here that it is calculated as the CPI today minus CPI 1 year before divided by 1 year before. So it is year on year change in CPI index into 100. So that is your inflation. And what is momentum? Momentum is what is CPI today minus CPI in the previous month divided by CPI in the previous month. So this is your momentum. So now so this is also known as month on month change. This is year on year change, and this is month on month change. So this is known as momentum. Okay, and so the inflation has decreased from 6.52 to 6.44. So if you see, then this 6.44 minus 6.52, which is minus 0.08, this is a decrease. So how this decrease happened? The decrease happened, this is a sum of two things. One is the momentum, that is 0.17, what happened in February compared to January of this year, plus the base effect, what happened and what is the momentum, okay, in the that February of 2022, that is in the last year. The February momentum was 0.25, okay, and since it is we are comparing to the previous year, there was a negative sign. So the base effect is minus 0.25 and the momentum is 0.17. So the base effect was so dominant, right? It just dominated this positive, and it reduced the inflation by 0.08. You got it? And this is a formula that I had given, but if you have time, you can check what is the formula and how it has derived. That is that change in inflation, okay? That's what the inflation that is in February from its January level is a sum of momentum and base effect, okay? Now, next I will go to Silicon Valley Bank, SVB. So the Silicon Valley Bank is currently in the news. Why? Because it actually faced a very severe crisis. How it faced a severe crisis? Okay, I will tell. But before that, let me introduce that. So the SVB Bank, the Silicon Valley Bank, is a venture capitalist bank which actually funding टेक स्टार्टअप्स लाइक those who are like engineering ये सब जो है उनको वो फंडिंग कर, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था. ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स के 16th लार्जेस्ट लेंडर थे. ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स 16th लार्जेस्ट लेंडर. एंड अभी क्या हुआ था, वो 10 मार्च को इसने अपने बैंक के लिए कैपिटल रेज करने की कोशिश किया, बट ये नहीं हो पाया, एंड इट वेंट बैंक रन्स. बैंक रन्स मीन्स सब लोगों ने आके उसको अपने जो पैसा डिपॉजिट किया था उसको मांगने लगा, एंड इट वाज नॉट एबल टू सर्व देम, देयरफॉर इट इज अ बैंक रन्स. एंड दिस बैंक रन दे कॉल इट बिकॉज ऑफ द टू थिंग, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन्स अभी देखो, आपको पता होगा कि अभी पूरे दुनिया में हाई इन्फ्लेशन है, देयरफॉर सेंट्रल बैंक्स आर एक्चुअली रेजिंग देयर रेट्स. Since they are raising their rates, so therefore the rates that started from around 1.25 to around 0.25% to now they have increased to around very high, more than
3.5%. Therefore, a sudden hike within a year has actually posed a risk for these banks. ठीक है, और अगर ये जो बैंक हुआ है वो इसीलिए फेल हुआ है क्योंकि अभी जो डिपॉजिटर्स है बोलोगे कि पैसा मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। एंड जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर ऐसा कोई बैंक होता है तो दे टेक इनटू अकाउंट, दे सेफगार्ड द डिपॉजिटर्स मनी। ओके, एंड ये जो क्राइसिस हुआ है इसका क्या होगा ना, बहुत सारे स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। ठीक है, जो मतलब धीरे धीरे पता चलेगा, बट बट जो बैंक्स वगैरह है जो है दे विल एक्चुअली ट्राई टू मिनिमाइज इट, जिसका जिसका ज्यादा एक्सपोजर होगा उसका इफेक्ट हो सकता है, बट हाउएवर गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू सेफगार्ड द डिपॉजिटर्स मनी। ना अब मैं बताता हूँ वो जो क्राइसिस हुआ वो कैसे हुआ। वो क्राइसिस इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो बैंक था उस बैंक में 2021 में बहुत सारे डिपॉजिट्स आ गए, बहुत सारे डिपॉजिट्स आ गए। तो इस बैंक के पास इतने सारे पैसे हो गए, तो वो बैंक क्या किया, तो बैंक एक्चुअली उसको जो इन्वेस्ट किया दिस मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश किया। एंड इन्वेस्ट जो किया दैट इज होल्ड टू मैच्योरिटी। होल्ड टू मैच्योरिटी मतलब मैं वो पैसा आपको इन्वेस्ट किया, मैं आपको डिमांड नहीं करूंगा जब तक आपका पैसा जो मैच्योरिटी अगर 5 साल या 10 साल या 2 साल जिस तब खत्म होगा तब मैं विड्रॉ करूंगा। सो इट विल मैच्योर ओनली इफ द टाइम आई मीन द ड्यूरेशन गेट्स ओवर। उसमें उन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन सडनली क्या हुआ, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व ने क्या किया, अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। जब अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उन्होंने ये बैंक ने जब इन्वेस्ट किया था तभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया है। और जब ज्यादा हो गया है तो इन लोगों ने जो 2021 में इन्वेस्ट किया था उन्होंने सोचा कि हमको अभी पैसे चाहिए। ठीक है, आपको अभी पैसे चाहिए, तो उन्होंने क्या किया ना, आके सडनली विड्रॉ किया। ठीक है, जैसे सडनली विड्रॉ किया, ये क्या किया, तो ये जो बैंक जाके मार्केट से बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि वो जो सिक्योरिटी जो एमबीएस उसने जो खरीदा था उसको वो अभी बेचेगा, लेकिन उसने जो प्राइस में खरीदा था, ठीक है, तभी इंटरेस्ट रेट कम था। और हम जानते हैं कि प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तभी इंटरेस्ट रेट कम था, प्राइस ज्यादा था। अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो चुका है तो इसलिए प्राइस भी कम हो चुका है, तो उसने लॉस में क्या हुआ उसको मिला हुआ। इससे क्या हुआ, वो जितने सारे डिपॉजिटर्स पैसा मांग रहे थे उनकी जो डिमांड था उसको फुलफिल नहीं कर पाया, जिसके वजह से बैंक रन स्टार्ट हो गया एंड इट वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड। ठीक है, दिस इज द मेन स्टोरी बिहाइंड दिस क्राइसिस। स्टोरी बहुत ही सिंपल है उसका, कि इन्होंने एक टाइम था जिसके जब जब उनके बहुत सारे पैसा थे, ठीक है, 2021 में जब हम लोग का कोविड चल रहा था, उसने उस पैसा को एक ऐसा जगह पे इन्वेस्ट किया जो बाद में मैच्योरिटी होने मतलब बहुत टाइम के बाद मैच्योरिटी होने वाला था। जब ये डिपॉजिटर्स अभी पैसा मांग रहे हैं, ये नहीं दे पा रहा क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो उसमें फंस गया। ठीक है, क्योंकि उसका जो सिक्योरिटीज का जो प्राइस था वो कम हो गया, जिसकी वजह से वो सर्व नहीं कर पाया और ये बैकफॉल्स हो गया। लेकिन आपको बता कि ये जो टॉपिक है बहुत ही रिलेवेंट है, आपको इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है कि हाउ दिस इज रिलेवेंट, क्योंकि इस साल की जो नोबेल प्राइज मिला है जिन लोगों को, बेन बनानके, डॉगलस डायमंड एंड फिलिप डिविक, इन लोगों को जो नोबेल प्राइज मिला है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसर्च। दिस एक फेमस मॉडल है डायमंड डिविक मॉडल, एक फेमस मॉडल है डायमंड डिविक मॉडल। ये कहता है कि बैंक रन कैसे होते हैं, बैंक रन को मतलब कैसे मतलब स्टार्ट होता है और कब बैंक रन नहीं होता है, अगर बैंक रन होता है तो फिर हम उसको कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है ये नोबेल प्राइज से भी कनेक्टेड है। ठीक है, इस साल की नोबेल प्राइज से भी कनेक्टेड है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि ये वाला जो टॉपिक है बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा। यही जो दो था आज मेरा जो है दोनों मतलब अपडेट्स था आप लोगों के लिए। ठीक है, आप अच्छे से थोड़ा सा न्यूज़पेपर इस सब वगैरह में पढ़ दीजिएगा, मैंने जितना कोशिश किया उतना आपको बताया, शायद आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो और अच्छे से मतलब जान पाएंगे इस चीज़ के बारे में। चलिए, तो थैंक यू सो मच आई मीन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर मुझे और कुछ अपडेट्स मिलता है तो मैं आप लोगों को पक्का शेयर करूंगा।
ठीक है, चलो, गुड नाइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके, टेक केयर।